تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سود کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم نے توبہ کر لیا تو تمہاری اصل رقم تم کو واپس ملے گی. لا تظلمون ولا تظلمون، تاکہ تم دوسروں پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کرو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جس میں کہ عرب کے چپے چپے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین امڑ آئے تھے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے جن جن اہم باتوں کا اعلان فرمایا تو اس میں سود کی حرمت کا بھی اعلان تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں یہ تمام کے تمام جتنے بھی جاہلی امور ہیں میرے پیر کے نیچے روک کیے گئے. اور اسی طرح وہ ربل جاہلیت موضوع تحت تدبیر، اور اسی طرح جو جاہلیت کا سود ہے یہ بھی میرے قدم کے نیچے روک دیا گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود کو ختم کیا اور فرمایا وہ اول ربن ابا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. لوگوں سب سے پہلے جس کا سود میں باطل قرار دیتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. فإنه موضوع كله، اور یہ سارے کا سارا ختم ہے. اگر کسی نے میرے چچا سے سود پر لیا ہے تو اصل رقم واپس کر دے اور سود بالکل نہ دے. میرے محترم دوستو، اور سود ایک ایسا معاشرتی جرم ہے، یہ معاشرتی جرم ہے، معاشرتی جرم تو ہے ہی ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس سے انسان کی عبادت اور اس کے سارے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کافروں کی دعاؤں کو تب سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان سودخور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے، حتیٰ کہ اس کی دعا تک بھی قبول نہیں کی جاتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع اللہ ربا و ربی صدقات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کا نہ تو حج قبول کرتا ہے، نہ تو اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ تو زکات قبول کرتا ہے، نہ تو روزہ، غرض کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سود خور بہتر ہے یا ڈاکو؟ تو امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سود خور سے ڈاکو لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مالداروں کو لوٹتے ہیں اور غریبوں کو لٹاتے ہیں، لیکن یہ سود خور کا دل رحم سے خالی ہوتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی آنکھیں زندگی سے آئی ہوتی ہیں. اور ایسا شخص کوئی آدمی اگر اس کے سامنے مر بھی جائے تو تب بھی وہ اس کے کفن سے بھی اپنا سود وصول کیے بغیر نہیں رہتا اور اس کے دل سے رحم و کرم کا جنازہ نکل جاتا ہے. میرے محترم دوستو، سود کی حرمت میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جس میں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں کام تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو. یعنی وہ گناہ جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر، جس بستی کے اندر کیے جائیں گے وہ بستی، وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ سنا تو کہا وما ہونا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تباہ و برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کی ناحق جان لے لینا، اور واکل الربا، سود کا کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، حق و باطل کا معرکہ ہو تو اس دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بولی بھالی فائد دامن مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا. یہ وہ جرائم ہیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ کیے جائیں وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوتا رہ جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل المرأة.
میرے محترم دوست، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم فیہ سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اسے لکھنے والے پر اور اس کی گواہی دینے والوں پر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں برابر کے برابر شریک ہیں۔ میرے محترم دوستو، سود یہ چیز کو اسی طرح کی دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ دینے کا نام، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ها وها، کہ سونے کے بدلے سونا زیادہ دینا یہ سود ہے، ہاں جتنا لیا ہے اتنا ہی واپس کرنا یہ سود ہے۔ اور اسی طرح البر بالبر ربا الا ها وها، گیہوں کے بدلے گیہوں اتنا ہی دینا یہ سود ہے، ہاں اگر زیادہ دیتا ہے تو یہ سود ہے۔ اور اسی طرح التمر بالتمر ربا الا ها وها، کھجور کے بدلے کھجور زیادہ دینا یہ سود ہے، ہاں اگر برابر دے تو یہ سود نہیں ہے۔ الشعیر بالشعیر ربا الا ها وها، جو کے بدلے جو زیادہ دینا یہ سود ہے، ہاں جتنا لیا ہے اتنا ہی اگر واپس کرے تو یہ سود نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اور پھر اسی چیز کو وہ زیادہ کر کے واپس کرتا ہے یہ سود ہے۔ میرے محترم دوستو، اب سود کی کئی شکلیں ہیں، اس میں سے کچھ پرانی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ جو پرانی شکلیں ہیں ان میں سے ایک مہاجنی سود، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ غریب لوگ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے سرمایہ دار افراد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے قرض لیتے ہیں، اور وہ مشروط سود کے ساتھ کہ ماہانہ آپ کو 2 روپے 100 پر سود دینا ہے یا 4 روپے یا 10 روپے، تو اس طرح وہ مشروط سود پر وہ رقم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اسے وقت پر لوٹاتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سال بھر میں اس اصل سرمایہ کا اور اس اصل رقم کا سود اگر اس مہاجن کو نہیں ادا کیا گیا تو وہ مہاجن کیا کرتا ہے، تو جتنا سال کا سود ہے وہ بھی اصل رقم میں شامل کرتا ہے، اور اس طرح وہ سود بڑھتے بڑھتے وہ مہاجن ان کے گھر بھی لے لیتا ہے، دکانوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے، مکانوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ ان کے کھیتوں پر بھی قبضہ کر لیتا ہے، جانوروں پر بھی قبضہ کرتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے باپ دادوں نے مہاجنوں سے قرض لیا تھا اور ان کے پوتے پڑپوتے آج بھی ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں تو اسی سود کے لیے جو کہ ان کے باپ دادوں نے انہیں دیا۔ اور آج کل یہ سود چند نئی شکلوں میں بازاروں میں آیا ہے، بالخصوص جو سونے کی مارکیٹیں ہیں ہمارے ہندوستان کے تعلق سے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سونے وغیرہ کی مارکیٹیں ہیں اس میں یہ گھنٹے پر سود چلتا ہے، یعنی آپ اگر یہ گھنٹے کے لیے لیتے ہیں تو اتنا سود ہے، 2 گھنٹے کے لیے لیتے ہیں تو اتنا سود ہے، 3 گھنٹے کے لیے لیتے ہیں تو اتنا سود ہے۔ تو جو تجارتی مارکیٹ ہیں تو اس میں مہاجن لوگ وہ گھنٹوں کے حساب سے سود پر دیتے ہیں، اور یہ ساری کے ساری شکلیں جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے کام۔ اور اسی طرح بینک کا سود، کچھ لوگ بینکوں سے اپنا گھر بنانے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے یا زراعت کے لیے یا گاڑی خریدنے کے لیے یا اور کسی ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں اور متعین شرح سود کے ساتھ اسے واپس کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی بالکل ناجائز ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے سود لینا تو ناجائز ہے یا لوگوں کو سود پر دینا تو ناجائز ہے، لیکن بینک سے لینے میں اللہ کے فضل سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے مولویوں کے وہ فتوے بھی دکھاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بینک کے سود کو جائز کرایا۔ میرے محترم دوستو، بینک کا سود حرام ہے، سود چاہے وہ کسی بھی شکل میں بینک کا ہو یا غیر بینک کا ہو، یہ سارے کے سارے ناجائز ہے۔ اور اسی طرح فکسڈ ڈپازٹ،
पसंद लोगों के को अपनी गाड़ी कमाई वो उनके हाथ में बर्बाद करके वो बेचारे जिंदगी भर के लिए कभी अफसोस बनते रहते। तो हकीकत यह है कि आज तक भी कोई ऐसा बयान जिसे कि 100% इस्लामी बयान कहा जाए, ये बहुत ही मुश्किल से ही नजर आता है, इल्ला माशाअल्लाह। और इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस ये है कि अगर कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी का बीमा कराना चाहता है तो वह कंपनी के किसी एजेंट के पास जाता है, तो कंपनी का एजेंट उसे कंपनी के किसी मोहतबर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वो डॉक्टर उसका तिब्बी मुआयना करके लिए उसकी सेहत के ताल्लुक से कंपनी को रिपोर्ट भेजता है कि इस शख्स की सेहत के मुताबिक ये उम्मीद है कि ये शख्स 20 साल तक जिंदा है। अब कंपनी उससे 10 साल के लिए मुआहदा करती है या 15 साल के लिए मुआहदा करती है कि वो 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर कंपनी को किस्तों में 10 लाख रुपए अदा करेगी। और जब ये 10 साल पूरे हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को 25 लाख रुपए अदा करेगी। और अगर 2 साल में, 3 साल में या साल में, 6 महीने में अगर उस क्लेम की या खरीदार की या ग्राहक की वफात हो जाती है तो उस कंपनी को पूरे 25 लाख उस ग्राहक के हवाले करना पड़ता। अगर वो जो ग्राहक है 2 साल तक वो कंपनी को वो पेमेंट कर देता है और माहाना किस्तें वो अदा करता है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें ताकत नहीं रहती, 2 साल या 2.5 साल के बाद छोड़ देता है, तो उसका जो कुछ उसने जो कुछ सरमाया उस कंपनी के अंदर जमा किया गया, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में जो कुछ उसने जमा किया उसमें से एक फिर से भी एक गंभीर से वापस नहीं मिलती और उसका जो भी पैसा है वो कंपनी से खा लेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इस लाइफ इंश्योरेंस में बेशुमार खामियां और खराबियां हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उलमा ने इसे नाजायज और हराम करार दिया है। मसलन ये कि ये अल्लाह पर तवक्कुल के खिलाफ, और नंबर 2 ये कि अक्सर इसमें या तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है या ग्राहक को। मसलन अगर कोई शख्स वो इंश्योरेंस बांधते 2 साल में उसका इंतकाल हो जाता है तो कंपनी को नुकसान उठाते हुए पूरे 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, या अगर उसने सिर्फ 2 साल बांधा और उसके बाद बांधने की उसके पास ताकत नहीं है तो ग्राहक का नुकसान है, उसमें से उस पैसे में से कुछ भी वापस नहीं मिलता है। और इस्लाम का ये हुक्म है कि ला ज़रारा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, ना तो खुद नुकसान उठाए और ना ही किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और खुद नुकसान उठाना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये जायज नहीं है। और ये भी देखा जाता है, तीसरा सबब ये भी है कि जो लोग इंश्योरेंस करते हैं 20 लाख का 25 लाख, तो उनके जो वारिसीन रहते हैं कभी कभार तो उनके दिल के अंदर गिरिश पैदा हो जाती है और ये कहते ये बुढ़ा कब में रहेगा और ये कब रकम हमको मिल जाए। बल्कि होता क्या है कि अगर वो नहीं मानता तो वो खुद मार लेते। और इस तरह खुद हमारे शहर के अंदर एक वाकया पेश आया कि 4 भाइयों ने मिलकर अपने बाप को मारा और उसके नाम से जो 20 लाख की जो इंश्योरेंस की रकम थी वो जाकर उन्होंने कंपनी से क्लेम की। तो मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं और ये सारी खराबियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उलमा ने इसके हराम और नाजायज होने का फतवा दिया है। और इसी तरह गैर मशमूला मौजूद चीज से इस्तीफा है, और वो ये है कि कोई गरीब शख्स किसी मालदार आदमी के पास जाता है जो सूदखोर होता है और उससे जाकर कर्ज मांगता है, वो कर्ज में उसका कर्ज रिहन में रख लेता है, उसमें या तो वो खुद रहता है या किसी दूसरे को किराए पर दे देता है और उसका किराया वो सूद पर देने वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये भी नाजायज है और हराम है। और अगर कोई मनकूल चीज मतलब गाय है, बैल है, भैंस है या ऐसी सवारी जैसे कि साइकिल वगैरह, अगर ये कोई गिरवी रखता है तो उससे महदूद इस्तेफादा जायज है। और शर्त ये है कि आदमी ने जिस तरह दिया है उसी तरह उसे वो वापस किया जाए। और इसी तरह जो सूद की नाजायज शक्ल है उसमें से एक
निकलता है तो उसे वो 1 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तो ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई भाई अगर ये करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। और जो नाजायज कमेटी है वो ये है कि 10 आदमी मिलकर 1 लाख रुपए जमा करते हैं, हर एक 10,000 रुपए, और उसके बाद फिर उसकी बोली लगती है। ये कहता है कि इस 1 लाख की जो रकम है मैं उसे 90,000 दूँ। दूसरा कहता है कि नहीं मैं 80,000 दूँ। तीसरा कहता है कि नहीं मैं उसे 70,000 दूँ। चौथा कहता है कि मैं उसे 60,000 दूँ। तो जो सबसे कम बोली लगाता है तो रकम उसके हवाले की जाए, और उस बेचारे जो कि अपनी जरूरत के तहत उसने वो कमेटी उठाई तो उसे 1 लाख रुपए उस कमेटी के हवाले देने पड़ते हैं। और बाकी ये जो 40,000 रुपए जो बचे हैं तो ये बाकी जो 9 लोग हैं या 10 लोग हैं ये मिलकर खाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नाजायज और हराम है। और इस तरह के जितनी भी चीजें हैं ये हमारे यहाँ इसको क्या है चीटी भी कहते हैं। और ये कोई तो बहुत ज्यादा आम। एक आदमी मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि मैंने ये कमेटी डाली थी और जो लोग पैसा लिए थे वो खा गए। मैंने कहा कि ये चीटी नहीं बल्कि चीटी, ये चीटी नहीं बल्कि चीटी है। और इस तरह का जो इस तरह के जो करतूत हैं तो इसका अंजाम यही होता है, या तो जो कमेटी वाला वो भाग जाता है या जो लोग कमेटी से पैसा लेते हैं तो वो भाग जाते हैं, मेरे मोहतरम दोस्त। और इसी तरह जो सूद की नाजायज शक्लें हैं उनमें से है लॉटरी। ये है कि कोई शख्स या कोई कंपनी लोगों में ये ऐलान करती है कि ये गाड़ी हमने खरीदी और इसके लिए हर एक दिनार जमा, तो चुनाचे वो 10,000 लोगों से 1 दिनार वसूल करती है और फिर उन तमाम लोगों के कूपन को डाला जाता है और फिर ड्रा निकाला जाता है कि जिसके नाम का वो ड्रा निकलता है वो गाड़ी किसके हवाले करती है। और ये नाजायज और हराम है, क्योंकि इसमें ये आदमी तो फायदामंद हो जाता है और बाकी सारे के सारे लोग जिन्होंने ये 1 दिनार या 2 दिनार दिए हैं तो वो सारे के सारे इसमें नुकसान उठाते हैं। और इसी तरह आप देखते हैं आमतौर पर मोबाइल में ये मैसेज आता है, हल कर दो अपना मिलियनर, कि आप मिलियनर बनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो फलां बटन दबाएं तो आपके मोबाइल से 1 दिनार कट हो जाए या 500 फीस कट हो जाए और उनके हिसाब में चले जाए। और वो फिर वो जो मोबाइल का वो मोबाइल जिस शख्स के नाम से रहता है तो उसका नाम उस पूरे में डाला जाता है और जिसको वो चीज मिल जाती है तो उसके हवाले कर दी जाती है और बाकी सारे के सारे लोग महरूम हो जाते हैं। ये बिल्कुल सूद की नाजायज शक्ल है। और इसी तरह शेयर मार्केट का हो, आज का दौर शेयर मार्केट का दौर है। नामों कंपनियां अपने कंपनी के शेयर फरोख्त करती है। जो जिस कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है। कंपनी जब फायदे में हो तो उसकी कीमत बढ़ती रहती है और जब घाटे में चले तो उसकी शेयर की कीमत मार्केट में कम हो जाती है। शेयर मार्केट के ताल्लुक से शेयर मार्केट में सरमाया लगाने के मुताबिक उलमा मुख्तलिफ किया है। कुछ उसे इसलिए जायज करार देते हैं कि इसमें कोई मुतय्यन सूद नहीं मिलता बल्कि नफा और नुकसान दोनों का एहतिमाल, जबकि अक्सर उलमा का ये ख्याल है कि दौर हाजिर में शेयर मार्केट सट्टे का एक अजीम कारोबार बन चुका है और इसमें दरमियान के जो दल्लाल होते हैं वो लोगों का सरमाया लेकर रफू हो जाते हैं। और इस शेयर मार्केट में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर कोई शख्स अगर इस तरह लोगों का माल लेकर भाग जाए तो उससे पैसा वसूल करने का उनके पास आज तक कोई तरीका नहीं। और हिंदुस्तान में इस तरह हो चुका है कि एक शख्स जिसका नाम था हर्षद मेहता, उसने 3,000 करोड़ की रकम लेकर वो फरार और बाद उससे पकड़ा गया, लेकिन वो कुछ भी उससे कंपनियों में कोई चीज उससे वसूल वो नहीं कर सकती। और इसी तरह अक्सर कंपनियां क्या कारोबार करती हैं इसकी शेयर होल्डर्स को कोई खबर ही नहीं होती, जबकि शेयर मार्केट की जो 90% कंपनियां हैं वो हलाल और हराम की तमीज के बगैर हर कारोबार करती हैं और उसका जो भी फायदा आता है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती हैं। और तीसरी बात यह है कि अक्सर कंपनियां अपने
जैसा कि आजकल आप कोई में देखते हैं कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे हिसाब दाना में या हिसाब नजमा में अगर आप 50 दिनार जमा करेंगे तो जो जमा करने वाला होता है उसका नाम हर माह के शुरू में या आखिर में होने वाले ड्रा में शामिल किया जाता है। अगर इसका नाम ड्रा में निकला तो उसे 1 मिलियन दिनार या 1 लाख दिनार या 10,000 दिनार या 1,000 दिनार इस तरह वो निकलते हैं। और हजारों लोग ऐसे होते हैं जो कि मिलियनर बनने की ख्वाहिश लेकर इन बैंकों में अपना अकाउंट खोलते हैं। और इस तरह के जितने भी ड्रा हैं तो ये सारे के सारे नाजायज हैं। और इनके मुताबिक अर्ज ये है कि ये दरहकीकत इन तमाम लोगों के पैसों का सूद है जो कि इस मखसूस अकाउंट पर पैसा जमा करते हैं। और इन तमाम लोगों के पैसे का सूद ये क्या ड्रा के जरिए से इनाम के तौर पर किया जाता है। और यहाँ पर खुद वज़ारत अल-औक़ाफ़ जो कुवैत की है तो उनसे भी फतवा पूछा गया तो वज़ारत ने जो फतवा दिया कि ये इस तरह के जितने भी ड्रा हैं ये सारे के सारे नाजायज़ और हराम। और इसी तरह किस्तों में खरीद और फरोख्त, आजकल किस्तों में खरीद और फरोख्त ये आम चीज़ है। और हर आदमी चाहे वो अमीर हो या गरीब वो किस्तों में गाड़ियाँ वगैरह खरीदता है। और इसमें उलमा मुख्तलिफ किया, कुछ उलमा ने इसे नाजायज़ करार दिया तो कुछ उलमा ने जिसमें खुद शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह वगैरह हैं तो उन्होंने कुछ शराइत के साथ उसे जायज़ करार दिया। मसलन एक शर्त यह है कि जिन बैंकों से किस्तों पर किसी चीज़ को खरीदा जा रहा है वो बैंक सूदी ना हो, ये एक शर्त है। और दूसरा ये कि मुद्दत की तायीन कर दी गई हो कि इतनी मुद्दत के अंदर आपको किस्तें अदा करना है। और किस्तों की तादाद भी मुतय्यन हो कि इतनी किस्तों में आपको ये रकम जमा करना है। और चौथी शर्त ये है कि अगर किस्तों की अदायगी में खरीदार से ताख़ीर हो जाए तो ताख़ीर की मुद्दत का सूद उससे ना वसूल है। मतलब 2 साल के अंदर अगर आपको गाड़ी का जो कुछ पेमेंट है उसे अदा करना है तो अगर आप 2 साल में अदा नहीं कर सके, 3 साल में अगर आपने अदा किया तो ये साल की मुद्दत का जो सूद है अगर वो आपसे ना वसूल करे तब जाए। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ ऐसे बैंक जो अपने आप को इस्लामी भी कहते हैं अगर इनका कोई ग्राहक मुतय्यन मुद्दत में किस्तें अदा नहीं करता तो वो उससे मुद्दत की ताक़ीद पर इसी तरह सूद वसूल करते हैं जिस तरह के सूदी बैंक वसूल करते हैं। इसलिए इस्लामी बैंकों से भी किस्तों पर मामला करते वक्त इस बात का इत्मीनान कर लेना जरूरी है कि आया ये मुतय्यन मुद्दत के बाद सूद वसूल नहीं करते। अगर सूद वसूल करते हैं तो ऐसे बैंकों से कोई राबिता ना रखा जाए और कोई मामला ना किया जाए। अगर वो सूद वसूल ना करें तो फिर ऐसे बैंकों से मामला किया जा सकता है। तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो किसी भी बैंक के इस्लामी नाम से धोखा ना खाए और इस तरह के बैंकों से किस्तों पर मामला करते वक्त वो चौका ना करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सूद की कुछ नई शक्लें थी जो कि मैंने आप के सामने पेश किया है। ये मौजूद तो बड़ा लंबा चौड़ा है तो लेकिन वक्त की जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसी का खत्म करना जरूरी है। तो ये चंद चीज़ें जो कि मैंने आप के सामने अर्ज किया है तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और हमारी औलाद को और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हराम खाने से महफूज़ मामून रखे, सूद से अल्लाह ताला महफूज़ मामून रखे। अल्लाह ताला इसके अल्लाह के दरवाजे हम तक खोल दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहेगी ईमान और सारी तौफीक दे, उस वक्त मौत दे तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम तमाम की मौत अता फरमाए। आमीन। मोहतरम दोस्तों, एक इत्तला है कि